So I guess we are live now. Great. So let's just wait for a couple of minutes and let people join us. So hi everyone. Uh, I'm Aryan Singh, and I have Danish Jamal alongside with me. Hello, Uh, everyone. so we welcome you all on the first session of Android Study Jams, brought to you by Team Techno Jam, Developer Student Clubs Galgotia University, and Developer Student Clubs ABS Engineering College. So we all three communities have collaborated in order to make this a big successful event, and we have like tried our level best to facilitate it as best as possible. So this session is basically a collaboration of all three communities, and the we have speakers from Team Technojam, from DSC Galgotias and DSC ABS, and also from abroad as well. So we would be introducing them later on. So I guess this is the right time to begin. So yeah, let me introduce myself first. So I'm Arindra Prakash Singh. I'm a core member of Galgotia University, basically Galgotia University DSC, and also a design lead of Technojam. I manage events of Galgotia University DSC and Technojam as well. And I have Danish Jamal alongside with me. Danish, please introduce yourself. Hello, everyone. Myself, Dani Jamal. I am currently in third year pursuing BTech. I am an Android developer and the current head of Technojam. I am very much passionate about Android technology, and we will be dealing with different Android apps and technologies throughout this session. It's a month long, and as we move further, we'll be exploring many interesting things about Android. So see you around. Thank you. Okay, so let's move forward to the next slide and let's begin with this session. Cool. So, beginning the program would be introduction of the DSC leads with whom cooperation this event has been successful, and it is going to be a great success as we believe. So we have DSC leads from both the colleges. DSC Galgotia University is represented by Piyush Kumar. He's a well-known guy in all the communities of Delhi NCR, and he's also leading DSC Galgotias University, and he's a great web developer and a data scientist as well. Alongside, we have Vanshita Singh. She's representing DSC ABS Engineering College. She has been super active in all communities of Delhi NCR, just like Piyush, and she's leading design in his colleges many communities, and has been also uh, hosted many events on her behalf. So let's move forward by next slide. So we have facilitators for this Android study jams for this year. So the first one is me myself. I'm the Android facilitator of Google from DSC Galgotias University, and we have Tanish Srivastav, the Android facilitator from DSC ABS Engineering College. So yeah.
Also, we have speakers from Team Technojam, and I would not just say speakers; they're actually super speakers. We have Danish Jamal, who himself leads the Technojam team. Uh, Technojam, as I believe, is the biggest like college community of Delhi NCR, and it has been always super duper active in hosting many mega events from starting from Dextrix 1.2, Dextrix 2.0, and even NASA Space App Challenge. So Danish is the lead of Technojam. Also, we have Ashwani, who is on the backstage, who is handling all this stuff. So thanks to Ashwani too. And the other speaker who would be facilitating this program to you all would be Sarthak Agarwal. He is the only person in our university who has cracked GSOC in his very own first year. So he's a pride of our college and our team as well. So I'm really proud and happy to announce both these as speakers and your mentors for this session. So let's move ahead. Coming to the study jam thing. So this program, like the first thing would be the first question arising in the mind of you all would be what is the program and why Google is trying to facilitate Android study jams using Kotlin and all. So the study jams is basically a community organized meetup, which we can say, yeah, definitely a meetup, and which is in a form of an event organized in divided into 2 or 3 sessions, which would be divided like introductory, then intermediate, and then advanced. So we would be trying to cover all the domains of the Android, the Kotlin language, and the technical details would be facilitated by Danish and Sarthak, obviously. The second thing we would be telling you about would be the different tracks in this program and what are the perks and what are the benefits of completing those tracks and why you should go for that. The थर्ड थिंग जो पर्क्स होने हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, दैट वुड बी द सर्टिफिकेट्स एंड certifications from Google, the profile badges for you all, and the things that will add not just something but almost everything to your bio. So also we would be clarifying the general FAQs just in case आप लोगों के मन में कोई डाउट होता है, तो हम लोग will try कि there should be no stone left unturned. Yeah. So the timeline of this program would be of around 3 sessions, and the completion of this timeline would be on 25th. So the first session, that is today, is 23rd December. We would be trying to cover all the introduction and the program introduction and the basics of Android Kotlin through this session today itself. The second session would be on January 9, which would be an intermediate level, and we would be checking and like tackling your progress, and would be able to mentor and provide you help and assistance in the intermediary level. The third session would be on January 16th, as we have planned till now, and that would conclude the program and advanced level, and we would be giving you around 9 or 10 days margin so that you all can complete your projects. You'll have to complete your projects and send them to us, and we'll send them to the Google team, and they'll verify that, and then we'll be providing you the certifications from Google and the profile badges and lot more stuff. So yeah, is there any next slide? So yeah, from now I get off the stage and off over to you, Danish. All the best. Thank you, Aryan, for such a wonderful introduction and keynote. Now, let's begin with the today's session. So, one thing I would like to add in the previous slide, as Aryan talked about different sessions, every student will be added to a like community channel, which is like we are using WhatsApp. So I expect that everyone has already joined the WhatsApp group because we will be sharing like all the information, the certificates, and all the related stuff in that channel only. So if anyone misses out, so then please, it will you all will be responsible. So I suggest that everyone must join the WhatsApp group, and throughout the like this period of 1 month or 1 2 days less,
We will be like providing a 24/7 support. If anyone has any doubt, like if he's stuck in even the setup, if any person who is not able to even set up Android Studio on his desktop, and then we will be providing like proper guidance and tutorials to how to do that. So it's very necessary that no one feel left out. So like this thing is for like who knows nothing about Android and Kotlin, for them also, and for them also who are like in the intermediate stage, and like they want to like increase their ability in, or their pursue Android as their primary career in the further. So that was one thing I would like to add. So now let's start with different tracks. Now this entire event is divided into two tracks, and one of the most important thing about the like is certificate, for which most students are excited about because it is from Google. So the certificate, all the students will be getting the certificate who will be completing both the tracks. Like you have to complete the entire tracks and all the, it is like it is a combination of code labs and everything. We will be guiding you in today's session what you all have to do, but just keep in mind that you have to complete all the tracks. Missing any one of them or like skipping any one of them will not work, because like each is independent on the previous one. It's like hierarchical structure. Like if you complete first one you get the basic, then second one you get the advanced. So it's not like that you jump on second one and you can easily get the certificate. It's not like that. So let's begin. First of all, let me like give you the introduction of the program by going to the program page itself. So I will be sharing all the links to the program page and rest of the things in the WhatsApp group itself. So after the event, you will be getting like you will be getting this doc where all the links that I have talked about in today's session will be available there. So all of you can get from there. So this is the intro page, Android Study Jams, where you are like getting two tracks, new to programming and prior to programming experiences. Today we'll be not even touching a single anything about prior programming experience because it's the first session. We'll be dealing with it in the second or future. But in case after attending this session, anyone like finds like he can complete the first one really fast, then he can jump to prior programming experience and explore that. But my personal suggestion, don't try prior programming experience first, because it expects you like you know the basics of Android, how things work, how Android handles the apps and like minimal stuff. So प्लीज उसको ध्यान में रखना, और पहले बिगनर वाला ही ट्राई करना, मैं यही बोलूँगा सबसे. सो हियर आर इट्स वेरी सिंपल. लाइक मैं क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट साइन अप है, तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे. आप लोग को पहले स्टार्टिंग में साइन अप करना पड़ेगा. सो फर्स्ट एवरीवन मस्ट साइन अप हियर, and then we'll be getting like very basic two broader division of this entire first track, which is Kotlin basics for Android and layouts. So Kotlin basics and entire Kotlin thing we'll be teaching in throughout the like three sessions. Yeah, like you will be getting the basics of Kotlin, where you will be able to understand all the basic fundamental like data types, loops, functions, classes, everything that we guarantee that everyone will be learning throughout this event. So if you don't have any experience, don't hesitate. So like this entire unit is divided into separate parts, which is further divided, where we'll be dealing with Android introduction, Android basics, where you'll be creating your first application, and then with basic layout, and then it goes further. The main motive of like showing you this is to like make you familiar what will be the like path that you have to follow, or how the things are laid out. So this is the simple course. It is like if anyone had ever tried like quick labs, I guarantee that it is much more simpler than that, because here you get everything in more simplified way, and it's not like you have given an account and you have to each time sign up, because Android development you do on your local machine. So in every part there's like a starting keynote which guides you through the what all the things are in this course. So like this is video, we are not going to see that. And then I would like to show you code labs. Yeah, right. So here is like simple, write your first program in Kotlin. So what you will be doing, you will be going step by step. So for example, I am on step 3 because I want to show you code lab. So what is code lab? Code lab is like another version of quick labs. Quick labs is only dedicated for the like GCP products, like all the things that are handled on GCP, Google Cloud Platform.
it is laid out on Quick Labs. But rest of the things like related to Android SDK, everything is here, which is known as Code Labs. It is by Google. So in this you will be getting a simple instructions. There are no timeline. It's not like कि अगर तुम एक बार start कर दो, then it's not like कि तुम 1 घंटे में वो complete करना ही है. Like तुम एक बार इसको start कर दो, थर्ड तक कर दिया, फिर तुम इसको बंद कर दो, देन यू कैन रिज्यूम. इट्स लाइक अ पीडीएफ डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे तुम एक एक लाइन पढ़ोगे व्हाट इज रिटन एंड देन यू विल फॉलो. So for example, this is like writing your first program in Kotlin. So तुम लोग को देख के लग रहा होगा कितना बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है. द सिंगल थिंग मैटर्स इज कंसिस्टेंसी. लाइक अगर तुम लोग थ्रू आउट द सेशन कंसिस्टेंट रहो और एक एक कोड लैब लाइन से कंप्लीट करते रहो, तो इट्स नॉट अ टफ टास्क कि ये कंप्लीट सबसे ही हो जाएगा. मतलब कोई शायद ही कोई ऐसा हो जिससे ना हो. तो इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इन योर ब्राउजर ओपन दिस, सो यू कैन इजीली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. आप लोग समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. फिर यहाँ पे आप जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप वो सारे लिख सकते हो. एंड मैं कोड का सिंपल इसको क्विक लैब से इसलिए कह रहा था क्योंकि देखो जैसे क्विक लैब पे क्या होती है, कई चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होती है जहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी वगैरह आपको खुद से डालनी होती है, या फिर कोई चीज़ मिसिंग होती है, या फिर कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा करना होता है. इसमें कुछ नहीं. इफ हेयर यू हैव लाइक इमेज दी हुई है तो उसके नीचे उसमें जो कोड है वो भी दिया हुआ है. सो लाइक तुम सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो. बट द मोटिव इज नॉट लाइक स्पून फीडिंग. यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है इट हैज़ लाइक बहुत ही डेप्थ में चीज़ें लिखी होती हैं एंड उनका एक्चुअल में मतलब होता है. सो लाइक यू कांट मिस एनीथिंग, यू हैव टू रीड इट लाइन बाय लाइन. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो और अगर आपको इससे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उस पे लाइक यू कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ दिस कोड लैब बाय गोइंग थ्रू दिस समरी एंड लाइक लास्ट 3 स्लाइड्स. बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में Kotlin सीख रहे हो, ठीक है? वो आपको एंड का कुछ बेसिक पार्ट दे देते हैं कि आप ये चीज़ खुद से ट्राई करो. जिससे कि आप कोई नई चीज़ सीखते हो, जो कि आप नेक्स्ट कोड लैब में भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको आसानी होगी. जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे हियर इज़ हिंट एंड रेस्ट ऑफ दिस स्टफ. तो ये कभी मत मिस करना. वैसे आपका यहाँ तक सॉल्यूशन कोड तक आपका ये पूरा खत्म हो जाता है, ये कोड लैब ज़्यादातर. पर मैं कहूँगा कि समरी और बाकी चीज़ों में भी आप जाके एक बारी रीड मारना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है. और प्रैक्टिस और उन सेशन में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है खुद से प्रैक्टिस करने के लिए. सो लाइक दिस वाज द बेसिक मतलब लेआउट था कोड लैब्स का, जो कि आप लोग को थ्रू आउट द लाइक मोस्ट ऑफ लाइक आई विल से 90% ऑफ द टाइम आपको इसी पे स्पेंड करना है, क्योंकि मेजरली वहाँ पे कोड लैब्स होंगी. ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि बिगनर है. आप जैसे-जैसे आगे बढ़ोगे तो उसमें आपको एंड्रॉइड का डिफरेंट अलग-अलग चीज़ें बताएँगे कि लेआउट्स कैसे बनाते हैं. और फिर उसमें कई ऐप प्रोजेक्ट्स होगा जिसमें वो आपको एक ऐप दे देंगे, गिटहब से जाके आपको क्लोन करना होगा और फिर वहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने होंगे. कई में कोई कोड दिया होगा जिसमें कुछ एरर फिक्स करके कोई नया फीचर इम्प्लीमेंट करना होगा. इन टाइप की सारी चीज़ें होंगी उसमें. और हर एक कोड लैब में आप कोई एक नई चीज़ सीखोगे. सो कभी भी ये मत सोचना कि जैसे आपने एक कोई भी नई चीज़ सीखी कि मान लीजिए कोई लेआउट कैसे बनाते हैं, तो नेक्स्ट कोड लैब में कभी भी उस नॉलेज को यूज़ करके आपसे कोई ऐप नहीं बनवाएगा. वो ऑफ कोर्स आपको नई चीज़ सिखाएगा. बिकॉज़ क्योंकि ये कोर्स फॉर्म में है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक प्रॉपर ऐप बनाएँ फिर नेक्स्ट में भी वही ऐप कंटिन्यू हुआ. तो इसलिए और एंड सेशन अभी एंड में जब मेरे पास सार्थक आएगा तो ही विल बी टॉकिंग मोर अबाउट लाइक व्हाट ऑल द एप्स जो आप लोग बनाओगे, उसके बारे में वो सिंपल इंट्रोडक्शन वगैरह भी देगा. तो लाइक उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो वो हम देखेंगे बाद में. सो लाइक दिस वाज़ द बेसिक्स लाइक गाइड टू कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है. और अगर इसमें भी किसी को कोई भी इश्यू हो, तो वो जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला था, वो ग्रुप में पूछ सकता है. अब मैं आपको प्रायर टू प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस वाला भी एक बार दिखाता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में मना क्यों किया था. हाँ, एक चीज़ और मैंने मिस की, बैजेस. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बैजेस, मैंने एक भी कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए मुझे एक भी बैज नहीं मिला. पर जैसे-जैसे आप ये कंप्लीट करते जाओगे तो ये सारे बैजेस आपके प्रोफाइल में ऐड होते जाएँगे. जैसे अभी कुछ देर पहले नीचे पॉपअप आया था, वो मेरे अकाउंट का पॉपअप था. तो वो आपको बेसिकली बता रहा था कि आपके कोई बैजेस नहीं है. तो ऐसे ही आपको सारे बैजेस अर्न करने हैं. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों. जैसे अब कोई भी नया बंदा स्टार्ट करता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएँगी. आप खुद देख लो लेआउट्स, नेविगेशन क्या होता है. तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको एंड्रॉइड थोड़ी-सी भी आती है, फिर भी आप स्टार्टिंग से करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अपडेट हो गई हैं. जो पहले एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखे हों या फिर 2-3 साल पहले भी स्टार्ट किए हों, मैं उन्हें भी बोलूँगा, क्योंकि ये दिस इज़ लाइक द न्यूएस्ट थिंग.
क्योंकि ये गूगल ने अभी बनाया है, ये बहुत ही लेटेस्ट चीज़ है, ये कोर्स जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट है। इसमें सारी चीज़ें अपडेटेड है, इसमें एंड्रॉयड एक्स की सारी एंड्रॉयड एक्स क्या होता है वो आगे बताया जाएगा आपको। एंड्रॉयड एक्स की सारी लाइब्रेरीज़ लेटेस्ट, लाइक समझ लो मतलब लेटेस्ट वर्ज़न है। So it's always better to gain a hands on the latest version if you even know the previous version of Android development, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं आर्किटेक्चर वगैरह। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग बिगिनर लेवल से करो और फिर उसके बाद इस वाले ट्रैक पे आओ। गेटिंग बैक टू द स्लाइड, सो मैंने आप लोगों को डिफरेंट ट्रैक्स का पूरा ओवरव्यू दे दिया कि कौन चीज़ कैसे होनी है, क्या है। अब उसके बाद एंड्रॉयड का पहला एप्लीकेशन हम बनाते हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बनाने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हमें क्या-क्या टूल्स चाहिए। लाइक हम अगर कोई भी चीज़ करते हैं, अगर आप लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो, अगर फर्स्ट ईयर का कोई तो वो शायद प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से ना हो, पर फिर भी अगर कोई भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है तो मतलब आपको पता होगा कि जैसे आप कोडिंग करते हो तो आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है या फिर कोई भी चीज़ें चाहिए होती हैं जिस पे आप कोई चीज़ कर पाओ, कुछ लिख पाओ तो आपका कंप्यूटर कुछ करेगा। तो वैसे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होता है। एंड्रॉयड स्टूडियो इज़ नथिंग, इट इज़ आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आपका पूरा बंडल्ड होता है सारी चीज़ें जो आपको एंड्रॉयड प्रो एक ऐप बनाने के काम आता है। इट इंक्लूड्स आपका सारा लेआउट बनाना, इट इंक्लूड्स कोटलिन में कोड लिखना, इट इंक्लूड्स आपको ऐप पब्लिश करना। जैसे प्ले स्टोर पे आप लोगों ने शेयर इट से शेयर किया होगा कि भाई मुझे एपीके दे दे, या फिर जो एपीके फाइल होती है वो एंड्रॉयड पैकेज का शॉर्ट फॉर्म होता है एक्चुअली एपीके एंड्रॉयड पैकेज। वो भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो से ही बनाते हो। उसमें आप ऐप को एक तरह से ज़िप कर लेते हो, अभी के लिए ये मान लेते हैं, और फिर हम उसको पब्लिश करते हैं प्ले स्टोर पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के सेटअप से। तो एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप कई लोग के दिमाग में आता है, इट्स अ बिट टायरिंग प्रोसेस। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो डॉक है मैंने इसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स दे दिए हैं जो कि प्रॉपर ट्यूटोरियल्स है। इसमें सबसे पहला है आपका एंड्रॉयड बेसिक डेवलपर्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा, इससे बेस्ट आपको सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप करने का, क्योंकि जो लोग नए हैं वो सोचेंगे सेटअप ही तो है, क्या इशू आएगा। पर नहीं, इश्यू आता है और बहुत लोगों में आएगा। आप ग्रुप्स में देख लोगे कि अभी मैं इसके बाद एंड्रॉयड सेटअप जब आप लोग करोगे, तो देखना कितने डाउट्स आते हैं। तो वो चीज़ होती है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो और जो भी चीज़ें जैसे बोली हैं, प्लीज़ फॉलो ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस। आप ये मत मानो कि मुझे तो सेटअप करने आता है, फिर मैं अपने तरीके से करूँगा, क्योंकि फिर एरर्स आएँगी। सो प्लीज़ गो टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द एंड्रॉयड लाइक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो एंड्रॉयड का, इसकी प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करो। अगर मान लो आप लोगों को इससे मतलब मन नहीं भरता या फिर किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब की लिंक्स डाल रखी हैं, आप लोग वहाँ पे विज़िट कर लेना। ये हमने फ़िल्टर की है, ये वन ऑफ द बेस्ट हमें लगी कि इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वन टू ऑल। ये विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए पूरे डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, आप वहाँ से ले लेना और एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोग अपने सिस्टम पे सेटअप कर लेना। सो मैं आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो का एक बेसिक लेआउट दे देता हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो एक्चुअल में होता कैसा है। अभी शायद मैं काम कर रहा था तो मेरा एक्चुअल कोई प्रोजेक्ट खुला हो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हेलो वर्ल्ड कैसे स्टार्ट करते हैं। हुँ, तो जैसे आप स्टार्टिंग में एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करोगे, जब सक्सेसफुली सारा चीज़ सेटअप हो जाएगा, जो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद होता है, तो आपको ये एक स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे आपको सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट या फिर एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट वगैरह दिख जाएगा। हाँ, एक बात और, अगर किसी ने पहले जेटब्रेन्स का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ किया हो, तो उनको ये काफ़ी सिमिलर लग रहा होगा। एक्चुअली ये इस वजह से है क्योंकि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो जेटब्रेन्स ने ही बनाया है। मतलब उसी के टॉप ऑफ द इंटेलिजेंट आईडीया ही बिल्ड हुआ है ये। तो इंटेलिजेंट आईडीया से काफ़ी सिमिलर है और जेटब्रेन्स के बाकी भी प्रोडक्ट्स अगर आप पाइचार्म, एपकोड ये सब यूज़ किए हो तो आपको दिख रहा होगा कि उससे काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने ही बनाया है ये। तो इसमें आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होता है, क्योंकि आप ऑफ कोर्स नया प्रोजेक्ट बना रहे हो। और यहाँ पे आप एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हो। एंड हाँ, एक चीज़ और, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल रहा हूँ जो आप लोग को नहीं समझ में आ रही होगी कि एक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी जैसे अभी एक टर्म आया, तो ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलती जाएँगी धीमे-धीमे जैसे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है? क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोड लैब जब आप लोग करोगे तो आप लोग को खुद वहाँ पे बेस्ट डेफिनेशन मिलेगी एक्टिविटी की। तो इसलिए मैं मतलब आप लोगों को क्यों बताऊँ, आप लोग जब करोगे खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का सिंपली नाम देना है, तो मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ उसको ऐसे ही। और यहाँ पे लैंग्वेज पे प्लीज़ कोटलिन सेलेक्ट करना, क्योंकि ये एंड्रॉयड जैम मेनली फ़ोकस कर रहा है, कोटलिन पे तो जावा मत करना।
ठीक है, अब यहाँ पे आपका एपीआई लेवल होता है। सी व्हाट इज एपीआई लेवल। एंड्रॉयड का आप लोगों ने डिफरेंट वर्जन होगा। आप कई बार अपने दोस्तों से पूछते हो यार तेरे फ़ोन में कौन सा वर्जन है, वो बोलता है ओरियो है, कोई बोलता है मेरे पे एंड्रॉयड 10 है, कोई बोलता है मेरे पे एंड्रॉयड नॉगट है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैप्ड होती हैं एक एपीआई लेवल से, जो कि मतलब गूगल का एक नंबर देने का तरीका है। लाइक एपीआई लेवल 19 जो है वो किटकैट है, 20 जो है वो किटकैट वियर वियर डिवाइसेस जो होते हैं, जो आप वॉच वगैरह पहनते हो, वो उसके लिए है। तो इन्होंने एपीआई लेवल इसलिए बना रखा है क्योंकि हर एपीआई लेवल का अपना एक एसडीके होता है, एसडीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। वो पूरा बंडल होता है जो आपको उस उस टाइप ऑफ डिवाइस पे ऐप बनाने में हेल्प करता है। लाइक यू कांट गो एनीवेयर। मतलब अगर तुमसे कोई बोल दे कि तुम पाइथन का कोड लिखो नोटपैड पे, तो तुम लिख भले से लोगे क्योंकि तुम्हें सिंटैक्स पता है, पर रन नहीं कर पाओगे। तुम्हें कुछ बैकएंड से कुछ चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कंपाइलर वगैरह, वैसे ही आपको बंडल चाहिए होता है। कोई डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ें चाहिए होती है, तो उसी को बोलते हैं एसडीके। तो ये अलग-अलग एसडीके होती हैं, तो उन्हीं को हैंडल करने के लिए ये एपीआई लेवल दे देते हैं कि इस एपीआई लेवल का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इस वर्ज़न के लिए रिलीज़ हुआ है, तो उनको अपडेट वगैरह लेआउट करने में आसानी होती है। इस वजह से एपीआई होती है। तो अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हो, तो आप कभी भी तुम ये नहीं बोलते कि मेरा ऐप एंड्रॉयड 8.0 तक सपोर्ट करता है। यू ऑलवेज़ से माय ऐप सपोर्ट्स एपीआई लेवल 26। सो डेवलपमेंट टर्म में एंड्रॉयड में जब भी वर्जन डिफाइन करना होता है, हम एपीआई लेवल के बेसिस पे करते हैं। सो इफ एंड्रॉयड 8.0 के लिए हम ऐप बना रहे हैं, तो हमारा ऐप का मिनिमम जो लेवल सपोर्टेड होगा वो एपीआई 26 तक होगा। सो मिनिमम एसडीके सेलेक्ट करना है, तो वही मतलब कि कितना मिनिमम हम चाहते हैं कि हमारा ऐप सपोर्टेड हो। और जब इसमें सबसे बेस्ट चीज़ है कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है योर ऐप विल रन अप्रॉक्सिमेटली 99.8% ऑफ डिवाइस। मतलब आज के वर्ल्ड पॉपुलेशन में गूगल के पास जो डेटा है उससे उन्होंने निकाला कि अगर आपका डिवाइस मिनिमम जेली बीन सपोर्ट करता है, तो वर्ल्ड में अगर 100% लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से 99.8% लोगों तक आपका ऐप पहुँच पाएगा। अब अगर मैं यही चीज़ 10 पे कर दूँ, तो आप लोग देख सकते हो 8.2% ओनली। मतलब अगर मैं अभी कोई ऐप बनाता हूँ एंड्रॉयड 10 के लिए, तो ओनली 8.2% ऑफ टोटल एंड्रॉयड यूज़र विल ओनली बी एबल टू एक्सेस हमारा ऐप, क्योंकि वहीं तक हमारी कंपैटिबिलिटी है। सो जनरली मैं मतलब जहाँ भी काम मतलब अभी तक किया है, जैसे अगर जीसॉक वगैरह प्रोजेक्ट्स में देख लो, तो लाइक लॉलीपॉप इज़ द बेस। मतलब ज़्यादातर लोग वही करते हैं, नहीं तो मैंने कईयों को देखा है जो जेली बीन तक भी जाते हैं। पर लाइक मतलब वो आपकी चॉइस है, आपका आइडिया है क्या करते हो, क्योंकि वो मतलब आप जैसा भी ऐप बनाना चाहो। सो आई एम गोइंग विद द एपीआई लेवल 21 लॉलीपॉप। ये सेलेक्ट करके हम इसको फिनिश करेंगे, तो हमारा ऐप सेटअप होगा। अब एक चीज़ है, कई लोग जब ये पहली बार करते हैं, तो वो मतलब देखते हैं कि मेरे में तो इतनी जल्दी हो रहा है सारी चीज़ें, उनके में ये प्रोसेस काफ़ी स्लो हो सकता है। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हो, तो कुछ चीज़ें एंड्रॉयड स्टूडियो को सेटअप करनी होती है बैकएंड से। बैकएंड से मतलब इंटरनली। तो वो चीज़ होने में पहली बार में काफ़ी टाइम लग सकता है। इट कैन रेंज आपका वाईफ़ाई का या फिर आपका जो भी सेल्युलर कनेक्शन है, तो वो आपका जितना तेज़ है, लाइक इट कैन टेक अप टू 20 मिनट्स और इवन 15 मिनट्स। मेरे साथ हो चुका है स्टार्टिंग में। कभी-कभी आधे घंटे भी ले लेता था वो। सो इट इज़ पॉसिबल, बस आप उसको लाइक डोंट गेट पैनिक और उसको क्लोज़ मत कर देना बीच में, क्योंकि फिर ज़्यादा एरर्स और प्रॉब्लम्स आती है। लाइक आप लोग अभी देख रहे हो, तो पूरा मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप है, पर फिर भी मैंने जब नया प्रोजेक्ट रन किया, तो लाइक इट्स डाउनलोडिंग अ फाइल ऑफ 102 MB। सो एंड्रॉयड स्टूडियो हाँ, काफ़ी ज़्यादा नेट लेता है ये, यू कैन से दैट। सो इट्स बिट टायरिंग प्रोसेस। तो ये सेटअप हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर द फ्यू मिनट्स। तब तक के लिए हम आगे स्लाइड में करते हैं, फिर मैं आपको दोबारा फ़ोन पे करूँगा। सो ये था हमारा एंड्रॉयड का बेसिक फर्स्ट सेटअप। अब हाँ, एंड्रॉयड का ये बेसिक सेटअप तो हो गया, इसके बाद हमें एक दो चीज़ें और डिस्कस करनी है, जिससे कि आपका बेसिक इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा, मतलब आपका सिस्टम सेटअप हो जाएगा। जिसमें से एक चीज़ है गिट। गिट और गिटहब आप लोग के पास होना चाहिए, क्योंकि वो जनरली प्रोग्रामिंग में काफ़ी आपको मदद करता है। क्योंकि ये सेशन एंड्रॉइड के ऊपर है, तो मैं गिट गिटहब पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो आप लोग खुद गूगल कर सकते हो कि गिट गिटहब कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर फिर भी किसी को ना समझ में आए, तो ग्रुप में पूछ लेना, मैं उसका भी लिंक आप लोग को शेयर कर दूँगा। सो गिट गिटहब इज़ अनदर थिंग। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है एक एक्सटेंशन। लेट मी शेयर दिस एक्सटेंशन, एंड्रॉयड एसडीके सर्च। सो एंड्रॉयड एसडीके सर्च का मेन लाइक काम क्या होता है और ये आप लोग को कैसे हेल्प करेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, मैं काफ़ी टाइम इस वेबसाइट का है, एंड्रॉयड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो अगर आप कभी भी अपने ब्राउज़र में जाके कोई भी एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें सर्च करते हो,
मान लो मैं लिखता हूँ एंड्रॉयड एस लिखता हूँ, एक लाइब्रेरी सेट है, कुछ भी लिखता हूँ, तो वो आपको सबसे पहली जो लिंक आती है हमेशा सर्च रिजल्ट में वो आएगी developer.android.com, जो कि एंड्रॉयड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट है। यहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे से उस रिसोर्स वाले फोल्डर में फाइल में जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वन टू वन मिल जाएगी, स्पेसिफिकली जेटपैक का मैंने खोला हुआ है। इसी में आपको एंड्रॉइड स्टूडियो भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसके भी लिंक वहाँ पे दी हुई है। तो ये सारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें मैं आपको जो स्पेसिफिक दिखाना चाहता हूँ, हम्म, तो जैसे ये हमारा बेसिक गाइड हो गया, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी रहती हैं कि कैसे कैसे करना है। लाइक गाइड इज लाइक, इसमें मोर ऑफ द इंग्लिश टर्म ज़्यादा होते हैं, कि इसमें आपको सारी चीज़ें दी होंगी कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। एंड रेफरेंसेस की आप जो भी गाइड देख रहे हो, उस गाइड से रिलेटेड आपके पास जितने भी रेफरेंसेस हैं, कि मतलब अगर आप उसमें कोई क्लास यूज़ कर रहे हो तो उस क्लास से रिलेटेड सारी चीज़ें या फिर जो भी चीज़ें आ रही है वो यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। अब इस एस डी के सर्च का मेन काम क्या है, जैसे आप कभी भी एंड्रॉयड में कोई भी चीज़ें करते हो, जैसे कॉटलिन, जावा या फिर कहीं एक्सएमएल में भी, एंड्रॉयड एस डी के में जितनी भी क्लासेस वगैरह हैं, लाइक वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस होती हैं। जैसे अगर आप कोई भी लेआउट बनाओगे तो उस लेआउट में कुछ बेसिक चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे अगर आपको एक इमेज डिस्प्ले कराना है इमेज पे, तो वहाँ पे आप इमेज यूज़ करते हो, इमेज इज अ क्लास। तो वो सारी जो क्लासेस हैं वो एस के अंदर प्री डिफाइंड है। उनका डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कभी भी सर्च करते हो, कभी भी पढ़ते हो, तो आप हमेशा गूगल करके कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मुझे इमेज अगर डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा एंड्रॉयड इमेज व्यू, तो मुझे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि इमेज व्यू क्या होता है, वो कैसे लेआउट करते हैं, उसका रिफरेंस जैसे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर मेरे पास ये एक्सटेंशन ना होता, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे व्यू सोर्स नहीं आता, ठीक है। व्यू सोर्स क्या होता है, व्यू सोर्स आपको डायरेक्टली उस फाइल के सोर्स कोड के पास लेके जाता है। दिस इज गूगल गेट। यहाँ पे पूरा प्रॉपर उनका जो एक्चुअल कोड है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो लाइक अगर आप कोई भी क्लास कहीं भी विजिट करते हो, तो आपको उसका सोर्स कोड देखना है, तो अगर आपके में ये एक्सटेंशन डाउनलोडेड है, तो यहाँ पे व्यू सोर्स का ऑप्शन आएगा, बाकी लोग में नहीं आता होगा। तो यहाँ पे आप व्यू सोर्स से वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जैसे मान लो आप कोई क्लास यूज़ कर रहे हो, आपको उसका फंक्शन जाना है, तो आप यहाँ पे सारा उसका सोर्स कोड देख सकते हो, रिलेटेबल क्या है। हाँ, आप एस के अंदर फाइल में भी जाके देख सकते हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग प्रीफर करते हैं गूगल करना या फिर ब्राउजर में सर्च करना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो लाइक अगर आप यहाँ पे ढूंढते हो, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी वन टू वन, ठीक। इसका एक पर्पज़ तो ये हो गया। सेकंड पर्पज़, अगर मान लो आप कभी भी कोई चीज़ सर्च करते हो, सो आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर चुके हो, तो यू हैव टू टाइप एडी। आप एडी लिख के स्पेस दबाओगे तो एंड्रॉयड एस डी के सर्च यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये एंड्रॉयड एस डी के सर्च। अब क्या हुआ है कि ये जो भी आप सर्च करोगे, ये डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में सर्च होगा। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर एंड्रॉयड एप्स के बारे में सर्च करता हूँ, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं, ये सारे एंड्रॉयड एप्स के अंदर जो क्लासेस वगैरह हैं वो है। अब अगर मैं किसी पे भी क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे लेकर जाएगा। इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं अवेलेबल है, इसलिए 404 आ रहा है। मैं ऐसे भी लिखता हूँ जिसका डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाए, जैसे कि लाइफ साइकिल। जैसे मैंने एंड्रॉयड आर्किटेक्चर लाइफ साइकिल के डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया, तो मुझे सीधा यहाँ पे डेवलपर्स वाले पे सारी चीज़ें मिल गई। सो लाइक यू डोंट हैव टू गूगल, दीज आर द टूल्स जो आपका काम काफ़ी आसान कर देते हैं, जो जनरली आप यूट्यूब वगैरह पे ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये बात लोग आपको नहीं बताएंगे कि ऐसा भी कोई चीज़ होता है। तो एंड्रॉयड एस डी के सर्च, ये इसका भी लिंक मैंने दे दिया है, या तो फिर आप एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी सर्च कर लेना एक्सटेंशन पेज पे क्रोम, जो कि ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं एच डी के लेवल वाला चूज़ करता हूँ जो मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आई थिंक ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो पाएगा। तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
यस, तो अब ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा। वो इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वर्जन पे ज़्यादातर काम किया है, वो जनरली आपका ये नहीं है, और मैं जनरली जावा यूज़ करता हूँ, इसलिए कॉटलिन का सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही है। तो जब ये आपका सेटअप हो जाएगा तो आपको बेसिक लेआउट वगैरह दिख जाएँगे। तो मैं आपको एक बारी जावा में करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। जस्ट अ सेकंड, लेट इट कंप्लीट। एंड हाँ, एक चीज़ और, ये जो भी आपका ग्रेडल वाला पार्ट या फिर एंड्रॉयड स्टूडियो जब भी स्टार्ट वगैरह होता है, इसमें आपको इंटरनेट मस्ट होता है। इट्स नॉट कि आप बिना इंटरनेट के एक चीज़ नहीं कर पाओगे, आपको हमेशा इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो को प्रोजेक्ट वगैरह सिंक करते हो या फिर स्टार्ट करते हो नया प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें करते हो, अगर आप ऐप भी रन कर रहे हो, फिर भी आपको इंटरनेट होना ज़रूरी है, एंड इंटरनेट भी इसका लाइक गुड कनेक्शन। ये आपका मतलब एक 2-3 एमबीपीएस तो कम से कम चलनी चाहिए ताकि आपका ढंग से हो पाए। और जो आज का सेशन है, इसमें हम बेसिकली यही देखेंगे कि मतलब हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे, मतलब जो सेटअप वगैरह होता है वो वाला पार्ट जो कि आप लोग खुद करोगे, और जो भी डाउट्स होगा वो पूछोगे। और एंड्रॉइड में कैसे मतलब ऐप स्टार्ट करते हैं, बेसिक एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है, उसका लेआउट, और फिर उसके बाद बेसिक कॉटलिन जो कि आपको अभी सार्थक बताएगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। सो सार्थक, तुम कंटिन्यू कर लो। आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से एंड्रॉइड स्टूडियो टाइम लग रहा है। तुम कोडिंग के बारे में बताओ, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। सार्थक। Me add. All right. So, hi guys. I'm going to talk about Kotlin versus Java. Basically, yeah. So, first of all, these are just my views. These are views gathered by me after working on a lot of projects that I've worked alongside Google employees and normal people as well. So, and these are just related to Android. These are not out of the scope. Like Java is used apart from Android, Java is also used, and same is the case with Kotlin. So now this comparison will be only limited to the Android field. It will not exceed that limit. All right. So the first thing that comes to mind when we talk about Kotlin is the null safety. So what's null safety? Whenever, like most of you, whenever you've been developing Android applications, there are things like null pointer exceptions. So Kotlin has a way of going around that null pointer exception. It provides null safety, and it's handy for the developer to have that null safety so that we can always avoid those null pointer crashes and stuff. The second thing is the no checked exceptions thing. So whenever you've been developing applications, there is always a thing where Java points out that you have to add the try catch block. Now Kotlin removes that factor. You don't have to necessarily add the try catch block. Kotlin takes care of that. There are functions, there are operators which take care of that. The third thing is, like, for a developer who's moving from Java to Kotlin, there is one thing which is very tinkering. Now, what is it? It's like interoperability. Now, what's it? Java to Kotlin and Kotlin to Java conversion. Suppose there's a big project, you have around 50 files, and around 40 files, they are in Java, but the rest files are in Kotlin. So there are certain factors, there are certain amount of tension that you might feel that, oh, will my code work, will my code not work. So there's no tension regarding that. Java and Kotlin have complete interoperability. What happens is, whenever you write a Java code or alongside a Kotlin code, they will work together in sync. There is no
disruption that is caused. I myself have I've worked on many projects which were previously written in Java, and I've added Kotlin code, and it has worked fine. So from my experience, yeah, it works well. The fourth thing is the biggest factor with why we should use Kotlin. It's the readability, the code readability. So whenever as a developer you're developing an application or you're writing a software, the first thing that should be in your mind should be that your code is well written. Now, how to judge that? So whenever someone else reads your code with little knowledge or with zero knowledge about coding, he should be able to read your code. He should be able to understand what you've written. And if um, I'm not saying completely understand, but yeah, he should get the gist of it. So Kotlin improves that. How it improves that? Suppose in Java you had to write the switch case, the whole switch case thing. Now a normal layman person, he would not understand what a switch means. What are we comparing? What are the different cases? What is this case keyword? Now, when implementing that in Kotlin, there is no switch case. There is this when variable. So what happens is when this variable and the different cases in it. Now we don't use the case variable here. So whenever the person reads it, he will understand it. At least he'll understand what's going on. He will not understand completely what's going on, but yeah, he'll get the gist of it. So enhancing of the readability of code is a must, and Kotlin provides you with that. Now, is it necessary? I got this question in chat as well. Is it necessary for us to learn Kotlin if you already know Java? There are mixed opinions about it. There are a lot of people who talk differently, they have different opinions. But from my perspective, I think yes, you should move to Kotlin. Why? Because one, it's easier to grasp. It's easier to grasp for a new coder. Second, it's the way forward. The way Kotlin is emerging in the industry, really well. It's really well received. How I can say that is, you must have heard about, if you're in the if you keep up to date knowledge of the industry, you must have heard about Ktor. So Ktor is nothing but backend support, which we can write in Kotlin. So the Kotlin will not just be limited to Android development. With Kotlin, you can develop backends as well. And I think it will be a very good language in the future. And for Android specifically, if we talk about Android, Google has, I think, made its official language Kotlin for Android development. So there will be a lot more support for Kotlin in the future and a lot less support for Java. And yes, Java is not dying. Java is not dying because it has multiple usages, but I think Kotlin is taking this ground in the Android industry. Now, talking about the benefits, like suppose you're a business developer and you want an app to be built. Now, what are the advantages of using Kotlin in that case? So the advantages are, I think, two or three, maybe one. The development time decreases by quite a lot because the laborious work of Java is transformed into the smart work of Kotlin. As I said, because I've done this, there was a file around 500 plus lines, and I transformed it to a 100 line code, just that file, when I transformed it from Java to Kotlin, and it was a major shift. It also optimizes your code to a certain limit, but I think the file size decreases as well. Now, the second thing is less crashes. So, as I earlier talked about the null safety or the no checked exception. So, what that does is it reduces the cases of crashes. Crashes are a major factor when you see an application. Whenever a developer has developed the application, crashes are the one metric that you scale that developer upon. Like suppose मैंने एक application बनाई and I've given it to uh, and my employer, and I said, okay, take a run at it, and he tests it and that app crashes. So what impression would that leave of me on in the employer's mind? He will think like I'm not good enough or stuff like that. With Kotlin, the app crash chances decrease by a good factor, I would say. Earlier I was doing development in Java, and
once I've switched to Kotlin, I've found ways where I can avoid crashes, and it's superb to use it. Okay, I think that's it for the Java Kotlin discussion. So yeah, so what will we be building throughout this program? So we will be building around 4 to 5 apps throughout this program. One will be the Hello World app. Second will be the birthday card app, where you'll enter the details, and the next page will load up with the details. There will be a birthday card in it. The third thing will be the dice roller app. Fourth will be about me, and the fifth will be track my sleep. So I'm very excited about the development of track my sleep because it's something new, and it will be very fun to teach you all and to get your reviews on it. So I guess that's it. Next, please. I guess thank you. Yeah, Danish Bhaiya. Yeah, and if anyone has any questions, please shoot up those questions in the chat. I'm always happy to answer. You can also write those questions in the group, and yeah, I'll be very happy to take them up. Yeah, Hello, and hello. yep, you're audible. Okay. So it was like really nice competition between Java and Kotlin. Thank you, Sarthak, for introducing our audience with the differences between Java and Kotlin. And we will be having Sarthak back in the more technical like field like Kotlin when we dive deep into Kotlin in the future session, in the session 2 and most probably 3. We'll be having Sarthak where he will be like dealing with all the Kotlin related stuff. We will be building many apps and guiding you through the code labs. So thank you, Sarthak. Now Yeah, continuing my part. So finally, my Android Studio first app has been started. So it took a bit of time because recently I cleared all the cache of my Android Studio and deleted all the SDK. So I downloaded the entire SDK again, but now finally it's done. So what we'll be doing is like I'll be guiding you through all the related stuff to make you familiar with all the things like which are shown on your screen currently. So whenever you start the app, the thing that will be visible on your screen is which will be similar like this, like this. So for each Android app, whenever you start, if you follow the guidelines which I told you, then you'll be having a main activity file which will be Kotlin in your case. Since it was a bit slow process, so I choose Java. So which will be Kotlin class file in sorry, Kotlin file in your case, and a activity main.xml file. So first of all, let me guide you through the all the toolbars and all the tools that are available in the IDE or the software. So at the top, since this is Mac, so try to find the similar things on your version of operating system if it's Windows or Linux. But like all the things are similar, most of them, except a few settings and all things are different. So first and the most important thing, which most of the people don't know, like how to change the font, because when you first start it, it's like a bit tiny, and it's the like some people don't discuss about it, but I think it's really important. So for changing the font or the like anything regarding the font style or size, simply go to the preferences or setting in case of Windows, then go to editor and go to font. Now here you can see all the font related like all the font family and all the sizes. Here you can manipulate the size of the font. So please feel free to play with it to make it soothe your eyes and whatever finds you best. So once you are done that, here you can start with the new project. If you are in like if you have already launched the existing project, or you can close the project by clicking here. And rest all the things we will be diving deep into in the further sessions, because there's no point of discussing it because it's more of a technical thing.
One of the most important thing is this toolbar, where in the starting here you can see all the like hierarchy and the files laid out. If you want to go to navigate to any part, you can do it from here, but use the side panel, which I'll be discussing. uh, and in the top toolbar here you can find a run button. This is button which you will be using most of the time because it is used to launch the app. Currently we'll be not doing so, we'll be doing in session 2, and you will be, of course you will be doing yourself because you have to follow the code labs, and there you have given the proper guidance how to start and run and what are the different actual ways of like running the Android apps on your physical device and on emulator, and how to set up emulator. So here is the thing, and you can run your app on your physical device, and if you have multiple devices connected to your desktop or computer, or laptop, sorry, you can like get all the list of devices. For example, if you build an app, you want to test it on a tab, on a smaller device, on bigger device, if you are building any feature which is only available to certain devices, like in display fingerprint scanner, if you are using that hardware, anything, any camera, flip camera or anything, then you have to connect multiple devices, and it will be listed here in the available devices panel, here you can find. And you can also run it simultaneously on multiple devices. Like for example, you have connected 10 devices and you want to run app on all the 10 devices, then simply click on run on multiple devices. And yes, one of the most important thing, if you are connecting your physical device for running Android application, then don't forget to enable a developer mode. In case anyone don't know, then please just message in the group like I am facing issue on enabling developer mode. I will be guiding you through how to do it. It is necessary because it uses ADB, Android Debug Bridge, to connect to your device so that it can run the APK. Because in your Android phone, only the signed APK are able to install. Signed, you can understand, is like verified. Yeah, verified. So all the verified, but the application you are building is currently not verified. It is in the development mode. So to run that, you need to enable the developer mode on your smartphone, which is the must. Without doing that, you will be like your device will be not reflected over here. So please keep that in mind. And in case anyone faces any issue, then please feel free to text in WhatsApp group. Now another thing I want to discuss is AVD. So what is AVD? For example, if you don't want to connect your physical device to your laptop, then what you can do is you can run a virtual machine. Like it is a virtual machine, but it and Google has given a name virtual device. So what it does is it creates a replicated version of Android on your machine. Like it allocates a memory. Like for example, let me show you. Like for example, here are the list of all the Google devices. Of course it is Google product, so here you will not able to find OnePlus. So here all the Pixels and the Nexus, which are the older devices of a smaller size, like you can see 4 inches, 3.7 inches. And there are also different Wear OS, tablet, automotive for car and for TV. So you can build all the virtual devices, where you can run the app on your system itself. So whenever you click on run, it will launch Android virtual device, and it will be listed here. So like this is a missing system image, it is showing because I haven't set up completely, but I have created a one, so it will not able to launch. But that's why it's showing here Pixel 3 API 30. So you can simply run on that, you don't need to connect to a physical device. Another thing is this side panel, which is a project panel. So what is project panel? Here all the files and different things related to your project hierarchy are shown, where you can click on them and it will be expanded and you will be seeing different files in it. And this is the compact version of all the files. Like if you see Android project in reality, then it will be very different. Let me show you. Wait. For example, this is the root folder. Here you can see the app, or here you can see the like Gradle, then a wrapper. These files are not visible here because this is the simplified version. Here only the necessary and editable files are shown, so that you can like it makes the development process a bit easier, because it's no point of seeing unnecessary files. But in some cases where we need to edit the source code, where we need to like add anything like NDK, if we want to add anything apart from like normal development, then we need
to go to the project or we need to see the entire bar here. Now I am able to see the entire directory and all of its content, including the external libraries. See, these are all the external libraries which are provided with the API level, which I have selected. Like there are some of the basic stuffs as I have told earlier, which is compulsory, जो हमको चाहिए ही होती है, उसके बिना नहीं build होता है ऐप. तो वो सारी चीजें जो भी हैं वो ये सारी आपकी फाइल्स में आप जाके उनके सारे जो भी, जैसे यहाँ पे आप जावा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जावा की होंगी, कॉटलिन होता है तो कॉटलिन की फाइल्स होती है. यहाँ पे आप सारी उनकी जो सोर्स कोड जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था वो आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगी. एंड इफ यू वांट टू इंपोर्ट एनीथिंग वो भी यहीं पे आपकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में ही ऐड होंगी. सो लाइक हियर यू कैन फाइंड ऑल योर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज एंड एप्स के अंदर SRC. लाइक अर्लियर आप लोग नोटिस कर रहे यहाँ पे SRC वगैरह कुछ नहीं था, पर अब नाउ वी कैन फाइंड इट बिकॉज दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर. लाइक जैसे आपको अपने फाइंडर में दिखता है या फिर फाइल एक्सप्लोरर में दिखता है, वैसे ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं. सो यहाँ पे आप देख रहे होगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जैसे टेस्ट वाला फोल्डर है, सब की चीज़ें हमेशा हमें ज़रूरत नहीं होती. जैसे लिब्स हैं, अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है तो वो एंड्रॉयड स्टूडियो स्मार्टली उनको रिमूव कर देता है. सो स्टार्टिंग के लिए मैं यही बोलूँगा कि ट्रैक 1 में तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लाइक ट्रैक 1 और मोस्ट प्रोबेबली ट्रैक 2 का 80-90% भी आप कंप्लीट कर लोगे बिना उसको स्विच करे. सो एंड्रॉयड पे लाइक स्टार्टिंग में लोगों को देखने में काफ़ी सूदिंग होता है, आसान होता है. लाइक आप यहाँ पे जावा खोलें, यहाँ पे टेस्ट, एंड्रॉयड टेस्ट, और यहाँ पे मेन जो आपके SRC के अंदर सारी चीज़ें हैं ये आपको दिख रही हैं. यहाँ पे आप मल्टीपल, जैसे आपको कोई कॉटलिन फाइल क्रिएट करनी है, यहाँ पे कॉटलिन फाइल क्लास मैंने क्रिएट कर ली, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आसानी से, जैसे demo.kt यहाँ पे आपको सिंपल क्लास फाइल मिल गई, तो यहाँ पे आप लेड आउट कर सकते हो. उसके अंदर डिफरेंट पैकेजेस आप बना सकते हो, सैम्पल डायरेक्टरी बना सकते हो. तो यहाँ पे आपकी सारी फाइल्स होंगी और ये काफ़ी कन्वीनियंट है. और रेस, व्हाट इज रेस? रेस स्टैंड फॉर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज में क्या होता है, आपकी सारी लाइक एसेट्स होते हैं. अगर आप कोई इमेज यूज़ कर रहे हो, अगर आप कोई जैसे ऑडियो यूज़ कर रहे हो, स्टैटिक ऑडियो यूज़ कर रहे हो जो बैकएंड से नहीं आ रही है, आपके डिवाइस पे स्टोर्ड है, वो सारी ऑडियो अगर आपको कोई स्टोर करनी है तो वो कर सकते हो. कोई वीडियो है तो वो स्टोर कर सकते हो. कोई इलस्ट्रेशन है, कोई आइकन है, कोई PDF, कोई भी मतलब फाइल जो आपको एज एसेट्स यूज़ करनी हो वो आप यहाँ पे रिसोर्सेज में रख सकते हो. अब रिसोर्स में आता है आपका लेआउट. लेआउट की फाइल भी रिसोर्सेज में होती है. जैसे आपको लेआउट में जो स्क्रीन पे दिखना है, लाइक आपको वो सारी चीज़ें भी इसी में रखनी होती है. जो हमारी एक्टिविटी main.xml फाइल, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा. ये भी आपका एक तरह से जो यूज़र को दिखता है, लाइक फ्रंट एंड जो है जिसकी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो, वो भी आपका रेस में ही आएगा, क्योंकि वो भी एक तरह का मतलब लेआउट है, रिसोर्स से रिलेटेड है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लेआउट. तो लेआउट फोल्डर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसके अंदर सारी हमारी जितनी भी लेआउट वाली फाइल्स हैं जो भी यूज़र को दिखेगा. जैसे आप एक कोई स्क्रीन बनाते हो, उस स्क्रीन का नाम होम है, तो यहाँ पे होम अंडरस्कोर या फिर मेन या फिर home.xml लग दिया. कोई दूसरा लॉग इन स्क्रीन बनाया है, उसके मेन पार्ट है तो वहाँ पे लिख दिया activity_login.xml. फिर ऐसे करके यहाँ पे सारी लेआउट फाइल आपकी एक जगह होंगी, जो कि इस res.layout मतलब res/layout के अंदर है. ठीक है. अब मिपमैप क्या होता है? मिपमैप में आपके लॉन्चर आइकन्स होते हैं. जैसे कभी भी आप एंड्रॉयड जब भी आप स्टार्ट करते हो, आप मतलब अपने फ़ोन पे, तो आपको एक आइकन मिलता है. मतलब वहाँ पे एक आइकन होता है जो कि आपके प्रोडक्ट को, आपके आइडिया को रिप्रेजेंट करता है. तो वो भी आप ऑफ कोर्स कहीं स्टोर करोगे ही, तो वो आप मिपमैप के अंदर स्टोर करते हो. एंड यहाँ पे डिफरेंट साइजेस वगैरह क्या हैं, ये सब आपको कोड लैब में बताया जाएगा. HDPI, MDPI, XDPI का मतलब क्या है, ऐसा हम करते क्यों हैं, फिर XML में क्या है, ऐसे करने की ज़रूरत क्या है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे बताई जाएंगी. सो इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग वहीं से सीखोगे. अनदर फोल्डर इज वैल्यूज. वैल्यूज में कुछ वैल्यूज स्टोर होती हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. जैसे आपको कोई कलर स्टोर करना है, तो लाइक कलर सिंपली पर्पल है, ठीक है, इसका आपने नाम दे दिया, और ये हेक्साडेसिमल मतलब हेक्स कोड है. कलर का हेक्स कोड जो होता है ये वो है. तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करके यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे हेक्स कोड उसका मिल जाएगा आपको. यहाँ पे मल्टीपल कलर को स्टोर कर सकते हो. अब आपको जैसे कहीं भी, जैसे आप जावा फाइल में या फिर कॉटलिन फाइल में कहीं भी एक्सेस करना हो, तो आप इसको एज ए रेफरेंस एक्सेस करोगे, एज अ वेरिएबल एक्सेस करोगे, ना कि आपको एक कलर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वहाँ पे आप सिंपली इसको रेफरेंस कर लोगे, एक्सेस कर लोगे, और ये कलर आपका अप्लाई हो जाएगा. सो इसका करने का पर्पस यही होता है कि जैसे मान लो आपका लॉगिन स्क्रीन है, आपने एक लॉगिन के लिए कलर चूज कर लिया कि हमारे लॉगिन पेज के लिए प्राइमरी कलर है. मान लो बाद में आपको कभी भी प्राइमरी कलर चेंज करना हुआ, तो आप सिंपली एक जगह पे करोगे, जितने भी जगह लॉगिन वाले पेज का प्राइमरी कलर यूज हुआ होगा एज ए रेफरेंस, वो अपडेट हो जाएगा.
तो सिंपली लाइक कि अगर आपको कोई वैल्यू 10 है, आपको अपने कोड में 10 वैल्यूज करनी है, तो डिफाइन अ वेरिएबल टॉप पे कि वो वेरिएबल है क्या, फिर उस वेरिएबल को यूज करो, क्योंकि एक भी जगह वेरिएबल अपडेट करोगे तो सारी जगह अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे आपको वैल्यूज स्टोर करते हैं। अब ऐसे जैसे कलर है, वैसे आपको अगर स्ट्रिंग स्टोर करना होगा, कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, जैसे ऐप नेम है। अब ऐप नेम अगर आपका पूरा एप्लीकेशन 1000 जगह यूज करता है, तो 1000 जगह माई एप्लीकेशन, जैसे मेरे ऐप का नाम माई एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे माई एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक जगह डिफाइन कर दिए। अब आपके ऐप में सारी जगह यहीं से रेफरेंस ले रहा होगा। और जैसे अगर मान लो मुझे कोई और भी स्ट्रिंग डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग नेम इसका कुछ भी दे देता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, सो इसका ये पर्पस है हमारा वैल्यूज वाले का। इसके अंदर और भी वैल्यूज होते हैं, जैसे थीम्स भी आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल थीम्स है आपकी, वो सारी चीज़ें भी होती है, वो आप लोग को कोड लैब्स वगैरह में या फिर आगे जब भी आप पढ़ोगे, जब भी जरूरत पड़ेगी उसको बताया जाएगा। बेसिक्स क्रिएट करने की, बेसिक ऐप क्रिएट करने के लिए आपको कलर्स और स्ट्रिंग की ही जरूरत पड़ती है, और अगर बहुत पड़ी तो आपको डायमंड की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक रिसोर्स फाइल होती है जो कि बाय डिफॉल्ट नहीं क्रिएट होती, हमें करना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे डबल एस आ गया गलती से, यहाँ पे सिंगल एस होता है। डायमेंशंस क्या करता है, इसमें आप डायमेंशंस स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप मल्टीपल, जैसे आप यहाँ पे आपने स्ट्रिंग्स किया था, वैसे आप डायमेंशन स्टोर कर सकते हो। डायमेंशन में आपको एग्जांपल इसी वजह से नहीं दे रहा क्योंकि डायमेंशन की अलग यूनिट होती है जो कि एंड्रॉयड में यूज होता है, जिसको हम इंडिपेंडेंट पिक्सल बोलते हैं, डीपीआई बोलते हैं। तो वो आप लोग पढ़ोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है अभी डिस्कस करने की। बेसिक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो ये था आपका प्रोजेक्ट पैनल। हाँ, एक चीज़ और, मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पहले कभी भी काम किए हो, जैसे अगर आप नोड.जेएस पे काम करते हो, वहाँ पे एक पैकेज फाइल होती है, पैकेज.जेसन करके, या फिर अगर पैकेज.जेएस, सॉरी, अगर आप और भी कोई भी प्रोजेक्ट में काम करते हो, तो उसमें मेन डायरेक्टरी होती है जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर बताती है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो क्या-क्या यूज़ कर रहा है। सो एंड्रॉयड में आप मैनिफेस्ट फाइल इसीलिए इंक्लूड करते हो, जब भी आप अपना ऐप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करोगे, तो वो डिवाइस क्या करता है, वो सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल देखेगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें डिमांड की। जैसे मान लो आपको कोई परमिशन चाहिए, जैसे मान लो आप यूज़र की लोकेशन माँग रहे हो, तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई ऐसी ऐप खोलो जिसकी लोकेशन चाहता है, तो वहाँ पे पॉपअप आता है कि लाइक दिस ऐप वांट्स टू लाइक रिक्वेस्ट लोकेशन एक्सेस, क्या आप अलाउ करते हो? सो ये सारी चीज़ें जो भी आप डिमांड करते हो कि ऐप को रन करने के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। जैसे मान लो मैं आपको सिंपल सा डेमो दूँ, जैसे मान लो मुझे यूज़र के फाइल स्टोरेज का परमिशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली यूज़र्स परमिशन लिखूँगा, और यहाँ पे मैं एक्सटर्नल डायरेक्टरी रीड राइट, देखो यहाँ पे रीड राइट आ रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे आपको रीड चाहिए तो रीड, यहाँ पे मैंने परमिशन डिफाइन कर दी थी। अब जब आपका एंड्रॉयड ऐप स्टार्ट होगा, तो एंड्रॉयड मतलब आपके फ़ोन को, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलरेडी पता होगा कि ये जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो, इसको एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड करने की ज़रूरत है। सो वो सारी चीज़ें जो भी है, वो आप यहाँ पे बताते हो मैनिफेस्ट फाइल में। आप जो भी बताओगे, वो एंड्रॉयड आपका जो भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका देख के जज कर लेगा कि आपका ऐप को क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे एक्टिविटी कैटेगरी डॉट लॉन्चर सेट है, तो इट कैन बी लाइक लॉन्चर क्या हो सकता है, हम क्या सोच सकते हैं कि कोई चीज़ लॉन्च हो रहा है। तो जब भी आपकी एंड्रॉयड, जैसे एंड्रॉयड के अंदर बहुत अलग-अलग पार्ट होता है आपके एप्लीकेशन के अंदर, जैसे लॉगिन स्क्रीन होगी, डैशबोर्ड होगा, फिर अकाउंट सेक्शन होगा, प्रोफाइल सेक्शन होगा, तो कौन-सा सेक्शन पहले लॉन्च करना है, ये सारी चीज़ें आप बताते हो। कि मतलब थोड़ा आप उसमें हायरार्की भी बताते हो कि ये एक्टिविटी पहले है, ये एक्टिविटी बाद में है, बाद वाली बंद हो तो पहले ये बंद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आप जो डिफाइन कर रहे हो, ये वहीं पे यहाँ पे कर रहे हो। जैसे आपने राउंड आइकन डिफाइन किया है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन का लेबल है, यहाँ पे देखो एट स्ट्रिंग यूज़ किया है। अब एट स्ट्रिंग क्या है? ये वही स्ट्रिंग है जो मैंने आपको वैल्यूज़ में बताया था, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया माय एप्लीकेशन पॉपअप, तो वहाँ पे आप चेंज कर दो, ऐप का नाम चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे आइकन है, तो यहाँ पे आईसी लॉन्चर, यहाँ पे आइकन का जो रेफरेंस है वो दिया हुआ है। अब ये रेफरेंस एट द रेट करके कैसे करते हैं, ये सब आप लोग को जब सीखोगे तो धीमे-धीमे साथ-साथ पता चल जाएगा कि ये रेफरेंस कैसे कर रहा है। सो वही चीज़ है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो आप कभी भी जैसे रेफरेंस वाली चीज़ देखते हो, आपको पता करना है उसकी एक्चुअल वैल्यू है कहाँ, मतलब या फिर वो डिफाइन कहाँ पे है, तो आप सिंपली कमांड बी दबाओ। लाइक मैं मैकबुक में तो कमांड बोल रहा हूँ, आप लोग कंट्रोल, विंडोज़ वाले कंट्रोल दबाएँगे, तो कमांड बी या कंट्रोल बी दबाओगे तो आपको उसके रेफरेंस पे लेके चला जाएगा जहाँ पे वो एक्चुअल में डिफाइंड है। ठीक है?
तो अब यहाँ पे जैसे मैंने माई एप्लीकेशन डिफाइन किया तो यहाँ पे आ गया। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा आईसी लॉन्चर, जहाँ पे डिफाइन है। कमांड भी करोगे तो जैसे मल्टीपल जगह डिफाइन थी तो वो मल्टीपल लिस्टिंग आ गई। आपको जहाँ पे जाना है, फिर जिस वाले विजिट करना है, एंटर दबा दो, वहाँ पे आपको लेके चला जाएगा। एंड दिस वर्क्स इवन इन दी जावा फाइल, इवन इन दी कॉटलिन फाइल। आप कहीं भी कोई भी क्लास है, उसका कोई फंक्शन है, वो कहाँ पे डिफाइंड है, कमांड भी दबाओगे तो उसका सारा यूजेस दिखा देगा कि वो कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, सो ये एक हैंडी टूल होता है, शॉर्टकट है, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है। आई वुड सजेस्ट कि जो लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो नोट कर लो कमांड बी, या फिर इफ इट्स पॉसिबल आ रहे हैं तो कहीं पे ग्रुप पे मैसेज कर देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये देख लेना। और उसके बाद आते हैं अब एक्टिविटी फाइल के बाद में डिस्कस करेंगे, एक्सएमएल फाइल पे आते हैं। सो लेआउट फोल्डर के अंदर आपकी लेआउट फाइल्स होती हैं, ये इसमें हम यूज़ करते हैं एक्सएमएल। ठीक है, एक्सएमएल इज़ नॉट अ लाइक, हम इसको एक लैंग्वेज नहीं कह सकते। एक्सएमएल बेसिकली बनाई गई थी डेटा ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि वेब में यूज़ होती है, जैसे जेसन आजकल ज़्यादा यूज़ होती है। पर लाइक वी ऑल्सो यूज़ एक्सएमएल, जो कि डेटा ट्रांसपोर्ट करती है, फिर वैल्यू स्टोर करने के लिए होता है। सो एंड्रॉयड जो है वो सिंपली आपका लेआउट स्टोर करने के लिए, इट्स नॉट बिल्डिंग। लाइक अगर हम ये बोले कि एक्सएमएल से हम लेआउट बिल्ड कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक हम स्टोर कर रहे हैं। मतलब ये एंड्रॉयड का जो एसडीके है वो इसको रेंडर करके आपको स्क्रीन पे लेआउट चीज़ें दिखा दे रहा है, पर वी आर सिंपली स्टोरिंग इट इन अ फाइल। लाइक यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें नेम स्पेस इंक्लूड किया। नेम स्पेस क्या होता है आपको आगे पता चल जाएगा कि नेम स्पेस इंक्लूड किया है, इसी की वजह से हमें चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक हम ये नहीं कह सकते, जैसे आप पाइथन में अगर कुछ करते हो तो वो पाइथन इज अ लैंग्वेज, इस वजह से वो हो रहा है। पर यहाँ पे एक्सएमएल की वजह से नहीं हो रहा है। इफ यू क्रिएट अ सेपरेट एक्सएमएल फाइल एंड यू राइट द सेम कोड, तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये सेम कोड आप लिख के एक्सएमएल में कहीं किसी तरह रेंडर करके ये आउटपुट ले आओ, ये वाली स्क्रीन, तो नहीं आएगी वो। तो ये सिर्फ एंड्रॉयड एसडीके के साथ ही काम कर रहा है। एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड जो है वो एक्सएमएल यूज करता है अपने लेआउट्स स्टोर करने के लिए सिंपली। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सिंपली एक टेक्स्ट व्यू है जो कि सेंटर में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड है। अगर मैं सारी चीज़ें हटा दूँ या फिर आपको बहुत सिंपल कोड दिखाऊं, तो मुझे एक दो चेंजेस करने दो, 2 सेकेंड। अब कोड आपको और सिंप्लीफाई हो गया। मैंने क्या किया, मैंने एक रिलेटिव लेआउट क्या होता है वो सारी चीज़ें छोड़ दो। मैंने सिंपली, मुझे क्या करना था, मैंने सोचा मुझे सेंटर में एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। एज अ मतलब प्रोग्रामर ये होता है हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करें। तो अगर आपको हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है तो आप सिंपली एक सिंपल टेक्स्ट व्यू डिफाइन करते हो। इसमें टेक्स्ट यूजर टैग यहाँ पे आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपको ऑटो कंप्लीट आ गया। आप चूज कर लो, आपको बेसिक चीज़ें आ जाएंगी। कोई भी हम जब भी कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं एक्सएमएल फाइल में, तो हमें उसकी विड्थ और हाइट देनी मस्ट होती है। उसके अलावा बाकी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, या फिर वो रिस्पेक्टिव जो भी लेआउट है उस पर डिपेंड करता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पे और भी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, पर ये दोनों चीज़ हर में मैंडेटरी होगी, क्योंकि सारे जितने भी आप यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, रिलेटिव लेआउट, जो भी चीज़ें देख रहे हो, वो एक बेस क्लास से इनहेरिट करते हैं जो कि है व्यू क्लास। सो लाइक व्यू क्लास में आपको विड्थ और हाइट देनी जरूरी होती है। अगर आप व्यू क्लास का कुछ बनाओ, जैसे व्यू ये देख रहे हो, ये खुद एक क्लास है। ठीक है, अब जैसे ये व्यू क्लास इज सिंपलेस्ट बेस क्लास फॉर ऑल दी लाइक लेआउट, जो भी आप यहाँ पे बताते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है व्यू है। ठीक है, तो टेक्स्ट व्यू ऑल्सो इनहेरिट्स व्यू, उसी के टॉप पे बना है जहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको विड्थ हाइट देनी जरूरी है। रैप कंटेंट क्या करते हैं, सब आपको जब आप बेसिक लेआउट वाला कोर्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आपको हाइट डिफाइन करना है, विड्थ डिफाइन करना है, और टेक्स्ट में जो भी आप लिखोगे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और ये स्क्रीन अगर मान यहाँ से आती है, यहाँ पे डिजाइन कोड डिस्प्ले। ठीक है, डिजाइन वाले पार्ट में क्या होता है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे साइड में पैलेट होगी, आप ड्रैग करो, ड्रैग ड्रॉप करो, या फिर इसको जहाँ पे आपको प्लेस करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, यहाँ पे जो भी फील्ड डिफाइन करनी है, नॉर्मल जैसे यूज करते हो आप कोई भी चीज़। मतलब सर इंग्लिश किसी को आती है तो आसानी से कर लेगा। यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, विड्थ क्या चाहते हो, हाइट क्या चाहते हो, विजिबिलिटी मतलब वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए स्क्रीन पे। और अगर आपको यहाँ पे पैलेट पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। सबको बटन चाहिए तो इतने टाइप्स के बटन्स हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेआउट चाहिए तो यहाँ पे अलग अलग लेआउट है। टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है, वो कर सकते हो। अगर मान लो आप नहीं यूज़ करते हो तो आप स्प्लिट पे जाओगे तो आपको दोनों पार्ट दिख जाएगा, जहाँ पे आपको साइड में पैलेट वाली स्क्रीन भी है और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर भी है। एंड अगर सिर्फ कोड पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ कोड दिखेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द लाइक प्रेफरेबल वे ऑफ डूइंग द थिंग, क्योंकि यहाँ पे आप साथ में जो भी चीज़ें कर रहे हो, हाँ ये लाइव है। इट्स नॉट लाइक कि आपको ऐप रन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप सिंपली अगर कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने डिलीट किया तो यहाँ पे
यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं जो भी लिखूंगा वो लाइव अपडेट होता रहेगा, तो आप सीधा कर भी सकते हो, फिर वहाँ पे आपको दिख जाएगा रिजल्ट। और जैसे मानो मुझे सेंटर करना था, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है सेंटर इन पैरेंट, मतलब इसका जो पैरेंट है, इसका पैरेंट कौन हुआ, मेन स्क्रीन। जो भी मेन स्क्रीन उसके बाहर है, वो सारी चीज़ें आपकी उसके सेंटर में होनी चाहिए, जो भी टेक्स्ट व्यू के अंदर है। तो यहाँ पे ट्रू कर दो आप, तो सेंटर इन पैरेंट ट्रू, तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो ऐसे ही हम बेसिक लेआउट बनाते हैं। अलग अलग टाइप होता है, जैसे कहीं पे हमें लीनियरली चीज़ें डिस्प्ले करनी होती है, कहीं पे हमें लीनियरली वर्टिकल, लीनियरली हॉरिजॉन्टल करनी होती है, कहीं पे दोनों का मिक्सचर होता है, पर्टिकुलर पार्ट रिलेटिव, पर्टिकुलर पार्ट लीनियर होता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम साथ में कंबाइन करके एक यूआई बनाते हैं। फिर वो सारी चीज़ें जो भी हैं वो आपकी इसी एक्सएमएल फाइल में जाती है, ठीक। और अगर मैं जावा फाइल में जाना नहीं चाह रहा, पर थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ कि जैसे मान लो आपको टेक्स्ट व्यू को रेफरेंस करना है, तो जैसे कोई भी चीज़ है आप उसकी आईडी डिफाइन करोगे। मैं यहाँ पे इसकी आईडी डिफाइन करूँगा, ठीक है। इसकी मैंने आईडी डिफाइन कर ली, टेक्स्ट, ठीक। अब इसकी आईडी डिफाइन हो गई। अब मैं अगर जावा हो, कॉटलिन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप एक्सेस करोगे तो इस टेक्स्ट नेम से जब भी रेफरेंस करोगे ये टेक्स्ट व्यू रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आपने एक वेरिएबल बना दिया जो कि इस टेक्स्ट व्यू को स्टोर कर रहा है, सो यू कैन एक्सेस इट एवरीवेयर। तो ऐसी चीज़ें काम करती है। हम एग्जाम्पल में कुछ चीज़ लिखते हैं, कोई लेआउट बनाते हैं, उनको आईडी असाइन करते हैं, फिर जिनकी चीज़ें ज़रूरत होती है हम जावा या कॉटलिन वाले फाइल में उनका बेसिक बिजनेस लॉजिक या फिर बैक एंड वाला पार्ट लिखते हैं। अगर कोई एपीआई उससे डेटा लेते हैं, फिर दोनों को मर्ज करके स्क्रीन पे चीज़ें शो होती हैं। सो ये आपका हो गया बेसिक एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड स्टूडियो का टूर। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कैसे क्या होता है। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आप लोग कभी भी जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप बहुत बार रन करो तो कैशे की वजह से एरर आती है, या फिर प्रोजेक्ट कई बार सिंक अच्छे से नहीं हो पाता। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ पे बिल्ड में जाके एक बार दोबारा बिल्ड कर लेना ग्रेडल में जाके, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका जितना भी प्रोजेक्ट है उसकी जो भी कैशे फाइल्स होती हैं, फिर वो सारी आपकी एक बारी डिलीट होके दोबारा से आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाता है। तो अगर उसमें कोई भी इशू होगा तो वो सही हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे जाना है माई एप्लीकेशन के अंदर जाके यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इससे आपका प्रोजेक्ट दोबारा बिल्ड हो जाएगा। एक चीज़ और, कई बार बहुत सारी ऐसी एरर्स आती हैं कि आपका ऐप स्टॉप हो रहा है, पर आपको लग रहा है कि मतलब वो एंड्रॉयड स्टूडियो का इशू हो सकता है। सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू बिल्ड एंड क्लिक ऑन क्लीन प्रोजेक्ट। क्लीन प्रोजेक्ट आपका फिर वो भी एक टाइप का कैशे क्लीनर ही होता है, जो आपकी अगर बेसिक एंड्रॉयड स्टूडियो से कोई चीज़ रिलेटेड एरर्स होंगी तो वो आपकी मतलब क्लीन कर देगा। और फिर आप रीबिल्ड पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ग्रीन आइकन पे क्लिक कर सकते हो, जो कि आपके प्रोजेक्ट को दोबारा रीबिल्ड कर देगा, या फिर मैंने जो तरीका बताया यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, तो आपका प्रोजेक्ट दोबारा बिल्ड हो जाएगा। और एंड्रॉयड स्टूडियो में कई बार ऐसी एरर आती है कि आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है एंड्रॉयड स्टूडियो। सो ये सारी चीज़ें थी। पर हाँ, ये सारी चीज़ें तब थी जब आपको आई लाइक यू आर 101% श्योर कि आपके तरफ से कोई एरर नहीं है। नहीं तो आपको यहाँ पे जब भी आप ऐप रन करोगे तो वो आपको कोड में बताएंगे, यहाँ पे नीचे एक पॉपअप आएगा जहाँ पे रन वाला चीज़ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मैंने ऐप रन नहीं किया। यहाँ पे एक रन बार आता है जहाँ पे आपको प्रॉपर आपका मतलब आउटपुट दिखेगा। वहाँ पे अगर कोई एरर होगी तो एरर आएगी, वो सारी चीज़ें आपको कोड लैब में बताया जाएगा। सो वहाँ से आप लोग वो सारी चीज़ें सीख लोगे। और अगर हाँ, एक चीज़ और, मान लीजिए आपको कभी टर्मिनल एक्सेस करना है तो यहाँ पे नीचे टर्मिनल का भी ऑप्शन होता है। सेम लाइक इंटेलिजे, अगर आपने जेटब्रेन्स का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ किया हो, जो कि आपके उसी एग्जैक्ट डायरेक्टरी में आप देख रहे होगे, एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट स्लैश माई एप्लीकेशन 3, ठीक है, वहाँ पे होती है। और एक चीज़ और, जैसे स्टार्टिंग में जब हम प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे, तो अभी आप लोग एक क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों के दिमाग में कि मेरे ऐप का नाम जो है वो तो माई एप्लीकेशन है, पर जो फ़ोल्डर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे फ़ोल्डर का नाम है माई एप्लीकेशन 3। तो स्टार्टिंग में मैंने 2 बार प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया था, तो उसकी वजह से उसकी फ़ाइल क्रिएट हो गई थी, इसलिए ये मेरे प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी का नाम है, ठीक है। तो दिस इज़ द रूट डायरेक्टरीज़ नेम, ठीक। ये प्रोजेक्ट का नाम नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम इज़ आपके स्ट्रिंग के अंदर जो आप डिफाइन यहाँ पे है, या फिर जो कि स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया वही होगा, ठीक है। तो एक फ़ोल्डर के अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशन सेम नेम से बना सकते हो, पर उसका रूट डायरेक्टरी नेम फिर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पे आप देख रहे हो माई एप्लीकेशन 2, माई एप्लीकेशन 3 तीनों बना हुआ है।
पर जो करंटली मैं जिस प्रोजेक्ट में हूँ माई एप्लीकेशन 3 में है, क्योंकि बाकी दोनों फेल्ड हो गया तो मैं क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये जो एप्लीकेशन नेम डिफरेंट है, डायरेक्टरी नेम डिफरेंट है, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। दैट वाज ऑल। अब बाकी आर्यन आगे कंटिन्यू करेगा, आप लोगों को बताएगा कि आगे आप लोगों को मतलब नेक्स्ट करना क्या है, कैसे कैसे आगे चीज़ें प्रोसीड करेंगी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, और आगे सेशन में आप लोगों से मिलता रहूँगा। थैंक यू। अश्विनी, ऐड कर दो। So yeah, guys, thank you, Danish. Thanks a lot, and also a lots of thanks for to Sarthak as well. You both have been like amazing. तुम दोनों ने काफी अच्छा सेशन दिया, and you have already motivated a lot of people now to begin their journey with Kotlin and Android. And I hope कि the audience have also enjoyed and understood the program and its necessity. Also, let's just move on to some doubts if anyone have any doubt. So देखते हैं कि क्या क्या doubts हैं लोगों के. So सार्थक, दानिश, तुम लोग you are free to take up questions. Yes, yes. Okay, so we have question. What if we do this course later? Do we get certificate then? शुभम, एक्चुअली ये कोर्स जो है इसका ड्यूरेशन इज टिल 25 जनवरी को यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट एंड आप दो ट्रैक्स हैं, प्रायर टू प्रोग्रामिंग एंड न्यू टू प्रोग्रामिंग. इफ यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स फॉर बोथ द ट्रैक्स, दोनों ट्रैक से कोड लैब्स और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेते हो आप, सो और वो वेरीफाई हो जाता है, देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. एंड अगर जो आप केवल एक ट्रैक करते हो न्यू टू प्रोग्रामिंग वाला, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट. बट इफ यू हैव ऑलरेडी बीन इनटू प्रायर टू प्रोग्रामिंग ट्रैक, देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इफ यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट इन दैट. सेकेंड ट्रैक में ओनली वन ट्रैक कंप्लीट करने पे सर्टिफिकेट इज अवेलेबल. बट फर्स्ट और सेकेंड ट्रैक दोनों करने पे सर्टिफिकेट कंफर्म है, एंड द प्रोजेक्ट विल बी ऑल्सो, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे दैट विल बी गिवन शाउट आउट फ्रॉम ऑल ऑफ आवर सोशल मीडिया पेजेस. Also, we'll be giving some special mentions to the best projects. हम लोग उनको ब्लॉग्स में या फिर लाइक सोशल मीडिया पे हम लोग उसको और अच्छे से प्रमोट करेंगे, सो दैट इफ सम टाइम जस्ट इन केस किसी का प्रोजेक्ट जेन्युइनली बहुत अच्छा हो और आगे वर्क करना चाह रहा हो, तो दे कैन गेट अ किक स्टार्ट एंड वील ऑल्सो प्रोवाइड यू मेंटरशिप एंड हेल्प फ्रॉम दैट. मेन जो इस प्रोग्राम का पूरा टाइमलाइन है वो आज से स्टार्ट हो गया है. यू हैव योर वी हैव किक ऑफ योर जर्नी. हम आपको गूगल फॉर्म, प्रोबेबली ये गूगल फॉर्म की लिंक देंगे जिसमें आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो. एंड फिलहाल आपको कोड लैब्स की, वील सेंड यू द लिंक ऑफ कोड लैब्स. आपको कोड लैब्स पे ही जाके वो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 का वो आंसर्स करने हैं. सॉरी, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के कोड लैब्स कंप्लीट करने हैं. आफ्टर दैट जो गूगल डेवलपर, एक google.dev करके एक प्रोफाइल पेज बनाया गूगल ने. अभी गूगल हैज रिसेंटली क्रिएटेड अ डेवलपर प्रोफाइल ऑन गूगल इटसेल्फ. सो उससे क्या होता है कि आप अपनी डेवलपर प्रोफाइल लिंक्डइन या गिटहब भेजने की जगह डायरेक्टली google.dev प्रोफाइल भेज सकते हो किसी को, और उस पे आपके अचीवमेंट्स, आपका डेवलपर साइट जो है, सो एनीवन कैन सी दैट. सो इट्स बेसिकली एक लिंक्डइन और गिटहब का कंबाइंड वर्जन बन रहा है ये. तो इस पे आप ऑनलाइन बैजेस एंड ई बैजेस एंड अपने सारे अचीवमेंट्स नोट डाउन कर सकते हो. सो ये जितने भी आप कोड लैब्स करते जाओगे, सारे के सारे काउंट होके आपके गूगल डेव प्रोफाइल पे जाएंगे, विच इज एक्चुअली लाइक गोइंग टू बी अ बिग बूम इन सम टाइम. तो अभी जब नई चीज पे आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट कर दोगे अपना टाइम एंड एफर्ट्स, सो लेटर ऑन यू विल गेट दैट मच बेनिफिट. एंड्रॉइड का बेनिफिट सबको पता है. एंड्रॉइड डेवलपर्स हैव मोर सैलरी दैन वेब डेवलपर्स. दिस इज द बिगेस्ट थिंग.
एंड एंड्रॉइड के चांसेस भी जीसॉक में अच्छे होते हैं एंड लाइक हर जगह, है ना? दानिश एंड सार्थक वुड बी लाइक एबल टू एक्सप्लेन इट मोर वेल कि एंड्रॉइड क्यों इतना अच्छा है। एंड ऑब्वियसली आप लोग भी एंड्रॉइड सीखने आए हो तो यू वुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट ओनली। कोर्स कहाँ से स्टार्ट करना है? हम आपको एक कोड लैब की लिंक्स प्रोवाइड करेंगे और हम वहाँ पे ही आपको सारे स्टेप्स दे देंगे। आपको वो कोड लैब्स कंप्लीट करने हैं, आपको अपनी प्रोफाइल पे ऐड करने हैं बैजेस। जैसे-जैसे आपकी प्रोफाइल आपके स्टेप्स कंप्लीट होते जाएँगे, आपके ऐप में प्रोग्रेस होता जाएगा, आपके बैजेस ऑटोमैटिकली आई गेस ऐड होते जाएँगे एंड हम लोग वहीं से आपकी प्रोफाइल ट्रैक कर लेंगे। सो जैसे ही आप अपना ट्रैक 1 या ट्रैक 2 कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा सो वी विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट फॉर दैट एंड जो ऐप सबमिशंस आएँगे, उनको स्पेशल मेंशन्स मिलेंगे एंड उन हुँ, One thing I'd like to clear out here is certificates will only be provided after completing track 2. या They will not be provided by just completing the track 1. You have to complete both tracks or at least track 2 if you're हुँ, starting like just the track. या And there is one question that I got in chat is Code Labs enough for learning Kotlin or should we do something additional? So yeah, additional reading is fine. Additional reading is actually very good. You must know the skill of reading the documentation because that will help you boost your development process. But I think Code Labs are enough for a beginner because they have the reading material and the practical material both in the same place. So yeah, you can start it with Code Labs for now. दानिश योर टर्न। No, I think Sarthak handled it pretty well. क्वेश्चन Just क्वेश्चंस like I would like to add one more thing कि like it's totally depend on you कि अगर आप जैसे कोड लैब पढ़ते हो तो if you only want to get certificate and complete it then like you can go तो के ऊपर ऊपर से देख लिया complete आपका हो जाएगा। पर जैसे कि मैंने आपने बीच सेशन में बताया था कि एंड में समरी और एक्स्ट्रा चीज़ें दी होती है जिसमें कि वो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक होता है, कई बार वीडियो ट्यूटोरियल होता है जो कि गूगल का ऑफिशियल होता है। तो अगर आप बेस्ट लाइक अगर आप बेस्ट उसका चाहते हो कि आप उसे फुल यूज़ करो तो आई वुड सजेस्ट कि वो सारी चीज़ें आप देखो जो कि वीडियो ट्यूटोरियल या फिर जो भी एक्सटर्नल लिंक्स दिए हैं उनको भी लाइक गो थ्रू देम वंस। तो वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा एंड लाइक हर कोड लैब के बाद इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा टाइम बट यू कैन डू इट लाइक तुम अपने थोड़े बहुत लाइक प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो लाइक वो कोड लैब करने के बाद का प्रोसेस में रहता है। तो अगर आप कोड लैब सीखते हैं आपको लगता है अभी कॉस्टिंग नहीं आती है तो लाइक यू कैन बिल्ड अ सिंपलर स्टफ जो कि एंड्रॉइड से रिलेटेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर लाइक जो भी आप कॉटलिन है आपके अगर पर्टिकुलर एंड्रॉइड है उसमें आपको थोड़ा नॉलेज आपको या फिर स्किल आपकी बढ़ानी है। तो यू कैन यूज दिस अप्रोच टू लाइक गेट बेस्ट बेनिफिट। आई थिंक this is just enough like about so we can end this. Just one more point. There are a lot of people asking from where we have to start our course. So for that, there will be links sent out in the groups, in the WhatsApp groups. You can see, join them, and you can take a look at them. I think the website is the place where you can start. You can build your profile and you can start with the courses. And yeah, that's it. शुड आई शेयर द स्क्रीन एंड शुड आई टेल कि कहाँ से स्टार्ट करना है एंड्रॉइड डेव वाला उसमें? Yeah, I think that will be helpful if you can do it. ओके, ओके, जस्ट अश्विनी प्लीज दानिश प्लीज देखते रहना, इफ आई मिस आउट समथिंग डू ऐड इट। So this is the link we will be sending you g.co/android/studyjams and इसमें there are two tracks, near to programming and the prior to programming track.
जैसे ही you will log into this page, there would be a surprise for you all, जो कि होगा Android Study Jam participant badge. So as soon as you sign in to this, you will be getting an Android Study Jam participant का badge, जो कि आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा after some time. So you have already जैसा कि आप लोग देख रहे हो, you have earned the Android Study Jam participant badge. So अगर मैं प्रोफाइल व्यू करता हूँ अपनी google.fb, तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल बैज रिफ्लेक्ट होगा. सो मैंने 17 नवंबर को अपनी प्रोफाइल बनाई थी. दिस इज द वन. एंड यहाँ पे मेरे बैज आ गया एंड्रॉइड स्टडी जैम पार्टिसिपेंट टुडेज डेट. ठीक है, तो आई हैव 2 बैजेस अर्न्ड एंड दिस इज द गूगल ऐप प्रोफाइल आई एम टॉकिंग अबाउट. ये प्राइवेट प्रोफाइल है अभी तो, बट एज सून एज आई, ये गूगल डेवलपर प्रोफाइल भी एक बीटा प्रोग्राम ही है अभी. इट्स नॉट वेरी मच ऑफिशियल, बट दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बूम सून. एंड इसी के लिए गूगल हैज फैसिलिटेटेड दिस थिंग. सो जैसे आप न्यू टू प्रोग्रामिंग हो, सो यू कैन स्टार्ट योर कोर्स फ्रॉम हेयर. एंड द अदर वंस जहाँ पे आपके अर्नेबल बैजेस आ जाएंगे, आप कौन कौन से आपको बैच मिलेंगे. एंड यूनिट 2 के जो ये बैजेस हैं, हर बैच को आप एक एज अ सर्टिफिकेट ट्रीट करो. एंड वंस यू कंप्लीट द बोथ द ट्रैक्स, न्यू टू प्रोग्रामिंग एंड प्रायर टू प्रोग्रामिंग, तब आपको हम आपकी प्रोफाइल से सारे बैजेस चेक करके we'll provide you certification from Google. And that's not an ordinary certificate. उस सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो एवरीवन नोज, एंड दैट्स व्हाट द प्रोग्राम इज फॉर. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है द सर्टिफिकेशन फ्रॉम गूगल, जो कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को. सो मतलब आपको ये दोनों ट्रैक्स पूरे करने होंगे. जस्ट इन केस यू आर ऑलरेडी एन एंड्रॉइड डेवलपर और आपने कर रखा है, सो यू कैन जस्ट गो फॉर द सेकंड ट्रैक एंड कंप्लीट ऑल द कोड लैब्स इन दैट. कूल. सो मेनली ये सब चीज़ें हैं. आप जैसे जैसे अपने कोड लैब्स पूरे करते जाओगे, स्टार्ट कोर्स करोगे, उसके बाद यू विल गो फॉरवर्ड. आपको कोड लैब्स और सारी चीज़ों का डिटेल्स मिल जाएंगी. जैसे ही आप ये एक्सप्लोर कर करके आगे बढ़ोगे, 5 एक्टिविटीज़, 1 एक्टिविटी, इट्स बेसिकली वेरी सिंपल. आपको सारे स्टेप्स और कोड्स मिल जाया करेंगे. यू जस्ट हैव टू कंप्लीट ऑल दिस एंड मेक अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ लर्निंग एंड द कंप्लीशन ऑफ योर प्रोफाइल एज वेल. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्टिफिकेट होने के लिए योर कंप्लीशन ऑफ बोथ द ट्रैक्स. सो एज सून एज यू कंप्लीट बोथ द ट्रैक्स, हम 16 जनवरी तक ऐसे 2 और सेशन करवाएंगे एंड 25 जनवरी को हम ये प्रोग्राम क्लोज करेंगे. 25 जनवरी वुड बी द लास्ट डेट इस प्रोग्राम की. सो हम लोगों का प्रोग्राम 25 जनवरी को क्लोज हो जाएगा. आफ्टर दैट वी वोंट बी प्रोवाइडिंग यू सर्टिफिकेट्स, बट जस्ट इन केस आप नहीं कर पाते हो, वी विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, मेंटोर यू. एंड हम लोग ये ग्रुप्स एक्टिव रहेंगे. नो लाइक देयर इज नो टाइम बाउंड फॉर दैट. Also, you can continue your code labs afterwards also, after 25 Jan. Just in case आपने कोई एक ट्रैक कर लिया and you didn't have time to complete the second one, 25 Jan के बाद आप कर सकते हो, but you won't be able to you won't be eligible for the certificate obviously, but you can obviously go for the learning part, and that's I guess the more important part. So let us just see if there are any more questions. Rishabh Soni has a question like what is competitive programming? So like it is out of the context, but okay, let me answer that. So like for example, if you like study normal computer science, you do coding, you study simple data structures and algorithm. But when you use your that skill to compete with other members available on like platform, it is not a social platform; it is competitive platform like CodeShare, HackerRank. Where you compete in the open world, where you have the ranking. So when you use that your coding skill to solve the problems and compete with other people, then that is competitive programming. So it is that simple. So if you want to get started, simply to create your account and code and complete. And then I think that is enough for today. सॉरी दानिश, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी लैग कर रही है. प्लीज़ माइक के पास.
I said I think that's enough for today. Yeah, I guess that's enough for today. For any doubts, guys, do join the WhatsApp group, uh, rebrand.ly/join WhatsApp. So, for any doubt, you can join the WhatsApp group, and there's a single link. If the group is full, we'll update the link rebrandly me, so you don't need to worry about it. But if there's any doubt, you are all open to join the group and ask us anything. We would be happy to help out. And please begin your journey from today. The certi would be provided after project submission. Actually, the project submission thing is not very clear about right now, but the tracks one and track two are very important. So, track two, the completion of track two and track one is the must thing for the certificate. And if you have already completed your project also, but the main thing is कि जब आप track one और track two करोगे तो you will do on some project only ना. So the project will automatically be completed when you do both these tracks. So आप obviously you will submit a project obviously also. So I guess WhatsApp पे जिसको join करना है, you all can join, and you all can kickstart your journey from now. And just stay tuned. We would be having our next session on 9th of January. So if you have any doubts or something related to that, हम लोग आगे के steps और आगे के levels आगे explore करेंगे. So stay tuned. Till then, thank you everyone. Thank you our DSC leads, Piyush and Vanshita. Thank you the DSC team, from DSC ABSCC core team, DSC Galgotia University core team, and Technojam core team. And thank you to both the speakers, Danish and Sarthak. Thank you to Aryan, Vanshita, Piyush, Lakshay, Kriti, and Ashwini as well. Thank you to all other who I have missed out. And let's meet next time. Till then, Merry Christmas and Happy New Year. Bye bye. Bye bye, guys. Bye bye.